وہ اس کی حالت اور اس کے فرار کی وجہ جانتا تھا، مگر جانے کیوں اسے یوں بے بس، گھبراتے، شرماتے دیکھ کر اسے ہمیشہ ایک عجیب سی خوشی ہوتی تھی۔ وہ اپنی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر خاموش ہی رہی، جبکہ وہ پنجوں کے بل بیٹھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے پاؤں سے جوتا نکال رہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر کھڑی ہوئی تو زریز نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں خود کر لوں گی۔ منہل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ پہلے کے زریز شاہ اور اب کے زریز شاہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ اتنا مہربان تو کبھی نہیں رہا تھا۔ کیا وہ کسی کرم پر مائل تھا اس پر، یا یہ ہمدردی تھی صرف کہ وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی اور اپنا ہاتھ اور پاؤں جلا چکی تھی؟ یہ مداوے کی کوئی کوشش تھی یا کسی جذبے کے زیر اثر تھا؟ وہ مسیحائی کی طرز کیسی دل فریب تھی! اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو یہ پل روک لیتی اور یہ لمحے اپنی مٹھی میں قید کر لیتی۔ وہ ستمگر اس پل موم ہوا تھا تو یہ اچنبھے کی بات ہی تو تھی۔ اس کو برے انجام سے ڈرانے والے، اس کو دھمکیاں دے کر خود سے خوفزدہ کرنے والے کا یہ کون سا روپ تھا جو منہل سے پوشیدہ تھا؟ کہاں وہ ایک نظر دیکھنے کا روادار نہ تھا اسے، اور کہاں اب یہ نوازشات کی جا رہی تھی اس پر؟ اگر نفرت میں یہ عالم تھا تو محبتوں میں وہ شخص کیسا انداز رکھتا ہوگا؟ کتنی پرتیں تھیں اس کی، اور کیا کیا کھلنا تھا ابھی! وہ تو اس کی نفرت کو ہی اختتام سمجھ بیٹھی تھی۔ اس سے آگے کی کہانی کیا تھی؟ کسی بلند و بالا اور مکفل قلعے کی مانند تھا وہ، کھلتا ہی نہیں تھا۔ وہ خیالوں کے جہاں میں کوئی مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے پاؤں پر اب مرہم لگا کر اس کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں نہیں تھی، اسی لیے نظریں اب بھی اسی پر جمی تھیں۔ مانا کہ میں بہت ہاٹ ہوں، مگر ایسے گندی نظروں سے تو مت دیکھو یار۔ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں جھک کر اس نے سرگوشی کی تو وہ حواسوں میں واپس پلٹی، جبکہ اس کی بات پر اور اپنی بے خودی میں کی گئی حرکت پر وہ شرم سے ڈوب مرنے کو تھی۔ اسی لیے اسے پیچھے دھکیلتے آگے بڑھنے کو تھی جبھی زریز نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اچانک لگنے والے جھٹکے کے نتیجے میں وہ برہنہ سینے سے آ ٹکرائی اس کے۔ یہ تو پھر غلط ہے نا، پہلے خود حشر اٹھاتی اور پھر دور بھاگتی ہو، نظروں سے گھائل کرتی اور پلٹ کر خبر بھی نہیں لیتی کہ ان نگاہوں کے وار سہنے والا زندہ بھی ہے یا اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ حسن سے چاروں شانے چت کرتی ہو، قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو، اور جب سامنے سے پیش قدمی ہو تو ہاتھ کھینچ لیتی ہو۔ کیا چاہتی ہو مسز؟ جوگ لے لوں تمہارے لیے یا صحراؤں کی خاک چھانتا پھروں؟ میں کو کچھ نہیں چاہتی، چھوڑیں۔ وہ بری طرح کسمس آئی۔ ایک تو مارے حیا کے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ منہل بی بی! عشرت نے دروازے پر دستک دی تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ لمحوں کا فسوں ٹوٹ چکا تھا، محبت اپنے پر سمیٹ چکی تھی، وہ حقیقت کی دنیا میں واپس پلٹ چکے تھے۔ زریز اسے چھوڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اپنا سانس بحال کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ کپڑے وہیں بیڈ پر رکھتے وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی۔ زریز کب آیا؟ حوریہ نے منہل سے پوچھا۔ جی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، کہیں جانا ہے شاید ابھی، اسی لیے چینج کرنے آئے ہیں۔ لگتا ہی نہیں کہ تم لوگوں کی شادی ہو چکی ہے، نہ کہیں گھومنے پھرنے گئے، یہاں تک کہ ویسے بھی کبھی اکٹھے کہیں نہیں آتے جاتے۔ وہ تو سدا کا لاپرواہ ہے، مگر تم تو خیال رکھا کرو میری جان، مرد بہت سے معاملات میں بالکل کوڑا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد کی زندگی جہاں عورت کے لیے کٹھن ہوتی ہے، وہیں مرد کے لیے بھی تبدیلی کچھ مشکل ہوتی ہے یہ، مگر اس رشتے کا حسن ہے کہ یہ یکسر دو انجان لوگوں کو ایک کر دیتا ہے۔ تم دونوں کزن ہو، بچپن ساتھ گزرا ہے تم لوگوں کا۔ اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی اس رشتے کی تو تم آگے بڑھ کر ہاتھ تھام لو اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سنگ کر لو۔ بیوی کے پاس بہت سے حقوق ہوتے ہیں، بہت سے گر ہوتے ہیں شوہر کو باندھنے کے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے کو اپنے ساتھ باندھ لو۔ تم محبت سے، نرمی سے اس کو جیسے چلاؤ گی وہ تمہارے پیچھے پیچھے چلے گا۔ حوریہ محبت سے اسے پاس بٹھاتے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا زریز شاہ پر یہ فارمولا کام کرے گا۔ انتہا کا چالاک تھا وہ شخص، اور اس کی ماں اسے کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے پیچھے چلے گا۔ وہ بندہ جو سب کو انگلیوں پر نچاتا ہو، چل ہی نہ پڑے وہ اس کے پیچھے پیچھے۔ زریز کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کبھی گھر پر بھی رک جایا کرو۔ زریز کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کبھی گھر پر بھی رک جایا کرو، ابھی تو آئے ہو۔ وہ کف لنکس لگاتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا جب حوریہ نے اسے پکارا۔ السلام علیکم۔ وہ ماں کے پاس آیا اور حوریہ کا سر چوم کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کبھی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو 2 گھڑی۔ فی الحال تو جانا ہے موم، میرے ایک بہت اچھے کلیگ اور دوست کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جنازے پر پہنچنا ہے ابھی، تو اس لیے ابھی اجازت دیں، ہوتی ہے پھر ملاقات۔ وہ جلدی میں تھا اس لیے مختصر بتاتا نکل گیا۔ ہنی کہاں ہو یار؟ میں صبح سے تمہیں کانٹیکٹ کر رہی ہوں۔ ہاں ابرو میں یہیں پر ہوں۔ کہاں جانا ہے میں نے؟ بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، فلو ہو رہا تھا اس لیے میڈیسن لے کے سو رہی، ابھی اٹھی ہوں۔ تم سناؤ؟ سنانا کیا ہے، آج میری طرف ہلکی پھلکی سی فیملی گیدرنگ ہے اور تم انوائٹیڈ ہو، اس کے بعد سب دوست کہیں پلان بنا لیں گے جانے کا، کیا خیال ہے؟ خیال تو اچھا ہے، مگر تمہارے گھر آنا، مطلب تمہارے اس چپکو کزن کو برداشت کرنا، مجھے وہ بندہ انتہا کا برا لگتا ہے۔
इतना कि मैं बता नहीं सकती तुम्हें। ये मर्द पता नहीं क्यों इतने वाहियात होते हैं, सब के सब एक जैसे घटिया, जहाँ लड़की देखी वहीं राल टपकाने लगते हैं। उफ, तुम मर्दों से हर वक्त इतनी बदगुमान क्यों रहती हो? सब एक जैसे तो नहीं होते ना यार। मैंने तो जितने देखे एक ही जैसे देखे। अल्लाह करे फिर पाकिस्तान में यहाँ तुम्हें कोई मिल जाए जो तुम्हारा मर्दों के बारे में नज़रिया बदल दे। इम्पॉसिबल। मर्द मेरी नज़र में कभी भी काबिल इज़्ज़त और काबिल तवज्जो नहीं हो सकते। सब के सब हवस के पुजारी हैं, कुत्ते की तरह लड़कियों के पीछे दुम हिलाते फिरते हैं सिर्फ गोश्त नोचने के लिए। उसके दिल में मर्दों के लिए इतनी नफरत थी कि आबरू के रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। इससे पहले कि उसका मज़ीद दिमाग ख़राब होता वो आने से मना करती, आबरू ने इस बात को ख़त्म करना मुनासिब समझा। चलो ये बहस फिर सही, फ़िलहाल रात को मेरी खातिर कुछ देर के लिए आ जाना। फ़ारूक तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैं साथ रहूँगी ना तुम्हारे, पक्का? अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी, बट ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। और ये बताओ कौन कौन आ रहा है? नाजी, महक, तलाल और जैजी को भी इनवाइट कर लिया। तुम्हारा फ्रेंड है तो हमारा भी फ्रेंड हुआ। आबरू से उसकी मुलाकात लंदन में 1-2 बार ही हुई थी उसके। उन दिनों आबरू वहाँ वीकेंड स्पेंड करने गई थी, इसलिए उनकी थोड़ी बहुत सलाम दुआ हो गई थी। और फिर जब 2 माह पहले वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए तो उसने आबरू से कांटेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ उसका कोई दोस्त तो था नहीं। सो आबरू से थोड़े ही दिनों में अच्छी खासी उसकी दोस्ती हो गई। नाजी, महक और तलाल उसी के दोस्त थे। फिर हनी की भी आबरू की वजह से उन तीनों से दोस्ती हो गई थी। तुम सबको मजाक लग रही हैं मेरी बातें? बीजान जो आज उष्णा की पुरजोर फरमाइश पर जाहिर शाह मीर को शादी के लिए घेरे बैठी थी, मगर मजाल है जो उनकी बात पर कान धरे। वो सब मस्खरेपन की इंतहा को पहुंचे हुए थे। हम आपके साथ हैं बीजान, आप हमारी वफादारी पर शक मत करें। मसला ये है कि हम भाई के सामने कुछ नहीं कह सकते, मगर आप यकीन करें हम भी यही चाहते हैं। आप अपनी ये मुहिम जारी रखें, कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं बीजान। सबने एक तुम सब एक ही थाली के कच्चे पट्टे हो। सब समझती हूँ मैं तुम दोनों की नौटंकी। तुम सबके बापों को तुम लोगों ने जैसे तुम सबके बापों को जैसे तुम्हारी माँ ने सेट किया है ना, तुम लोगों को भी हमारे बच्चों की माएँ ठीक करेंगी। अर्श ने आगे बात कंप्लीट की। तुम्हें बड़ी जल्दी है, पहले बड़े भाई बैठे हैं, शर्म कर लो। लो, जुरेज की भी तो हुई है जाहिर भाई से पहले शादी, और वैसे भी बड़े भैया को तो दूर दूर तक कोई इरादे नज़र नहीं आते। तो आप बिस्मिल्लाह करके मुझे निपटाएं, फिक्र ना करो। जिस हिसाब से भाभी ऑफिस के चक्कर लगा रही है ना, इंशाल्लाह बड़े भाई जल्दी घोड़ी चढ़ने वाले हैं। जुरेज की आवाज़ इतनी थी कि सब उसकी गुलफशानी बासानी सुन चुके थे। तुम्हें बकवास किए बगैर खाना हजम नहीं होता ना? वो बीजान की वजह से बस घूर ही सका। भाई गुस्सा क्यों होते हैं? माँ कसम, कोई मेरे पीछे इतने चक्कर लगाए तो मैं हंस के हाँ कर दूं। और एक आप हैं, और वैसे भी हम दिलो जान से उन्हें अपनी बड़ी भाभी मान चुके हैं। क्यों, क्या कहते हो भाइयों? औरत शेर ने बाकियों की राय लेना जरूरी समझा। ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम लोग? बीजान ने चश्मा ठीक करते उनको घूरा। हम भाई को शादी के लिए मना रहे हैं बीजान। चलो उठो, नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद के लिए निकलो, बहुत हो गई कीकी। बीजान ने बच्चों को भी नमाज रोजे की आदत बचपन से डाली थी, क्योंकि वो खुद पंजगाना नमाज के साथ नवाफिल इबादत की भी आदी थी। फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी इसकी तरगीब दी, और अब उनके बच्चे उनकी घुट्टी में ये आदत पड़ चुकी थी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मम्मी। वो स्लीप पर चढ़कर बैठी महिमा से हलवा बनवा रही थी। जब खुशबू आने लगे तो समझो हलवा तैयार है। अब बस 2 मिनट इसको हल्की आंच पर रखें ताकि घी ऊपर आ जाए, फिर मेरी गुड़िया का हलवा तैयार। ओ मम्मी, ईशा लव्स यू। उसने लाड से महिमा के गले में बाहें डालकर अपना सर उसके सर से जोड़ा। यू टू बेटा, अब आप चेयर पर बैठो, मैं आपके लिए निकालती हूँ। मम्मी, मेरी ब्लू वाली न्यू शर्ट नहीं मिल गई। औरत शेर आवाज़ें लगाता आया। बेटा वो तुमने ही तो वहीं रखी थी, अच्छे से देखो अलमारी में ही होगी। वो तो तुमने पहनी नहीं, कहाँ जा सकती है फिर? आप आकर देखें, मैं लेट हो रहा हूँ। तुम चलो, मैं आती हूँ, ईशल को हलवा निकाल कर दे दूँ। ये इतना सा काम खुद भी कर सकती है अम्मी, बच्ची नहीं है वो चिढ़ जाता था जब सब उसको नन्ही काकियों की तरह ट्रीट करते। औरत बेटा बुरी बात है, कौन सा तरीका ये बात करने का छोटी बहन से? छोटी बहन अब अच्छी खासी बड़ी हो चुकी है बाय द वे ये, और आप भी इसको अब हलवे निकाल कर देने की बजाय इसको बनाना सिखाएं। निकम्मी लड़की। ईशल की बात और उरद शेर टांग ना अड़ाए, मुमकिन ही नहीं था। मम्मी आप देख रही हैं उरद शेर को, ये हमेशा ऐसे ही करता है मेरे साथ। उफ, तुम दोनों फिर से शुरू हो जाओ। तुम ये हलवा लो और तुम मेरे साथ आओ, मैं देख कर दूं तुम्हारी शर्ट। माहिमा ने जल्दी से मामला समेटा। अल्लाह करे मिले ही ना इसकी शर्ट, हिटलर कहीं का। वो समझी कि वो माहिमा के पीछे जा चुका है, इसलिए रुख मोड़े प्लेट पर झुकी और जोरों शोर से भड़ास निकालने लगी। जब उसने प्लेट अपने सामने खिसकाई तो ईशल का हाल यूं था जैसे फ्रीज हो गई। क्या कह रही थी तुम? आवाज़ कम थी, मैं सुन नहीं सका, अब बोलो। मज़े से हलवे का चम्मच मुंह में रखते वो बोला। उरद शेर वापस करो, ये मेरा है। वो प्लेट की जानिब लपकी, पीछे हटा। ये उरद शेर क्या होता है?
तुमसे कितने साल बड़ा हूँ मैं? साथ भाई नहीं बोला जाता तुमसे? यकदम उसके तासुरात संजीदा हुए। सॉरी, वो गलती से निकल गया मुँह से। लाख इख्तलाफ सही, मगर उस वक्त वो गलती पर थी, सो भलाई थी कि मान लेती। बच्ची मत बना करो, गलतियाँ हमेशा तुम ही क्यों करती हो? आपको मेरे साथ क्या मसला है? हर वक्त क्यों टोकते रहते हैं मुझे हर बात पर? वो भी आज पूछ ही बैठी। क्योंकि मुझे अपने दोस्त से प्यार है। तुम्हारी हरकतें देखकर यही कह सकता हूँ कि अल्लाह उस पर रहम करे। मुख्तसर सा कहकर वो चला गया, जबकि पीछे वो यकदम रंगों में नहाई। धड़कनों की रफ्तार पल में बढ़ी थी। वो लैपटॉप खोले, साथ जाने कौन कौन सी फाइल्स बिखराए बैठा था, जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यस, उसने बिना सर उठाए इजाज़त दी। महिमा उसके लिए दूध लाई थी। अभी काम रहता था तुम्हारा? मम्मी, आपने क्यों जहमत की? इस वक्त अफजल के हाथ भिजवा दिया होता। उसने लैपटॉप साइड पर किया और उठ खड़ा हुआ। जहमत कैसी भला? भला माऊँ को क्या जहमत? अपने बच्चों के काम करते तो खुशी होती है। थैंक्स मम्मी, आप आए बैठे यहाँ। वो बाकायदा अपने हाथ से उन्हें बेड तक पकड़ कर लाया था। डैडी सो गए? नहीं, वो अभी कुछ देर पहले ही आए हैं। तुम्हारा पूछ रहे थे, सुबह मिल लेना उनसे। जी ज़रूर, मैं ऑफिस जाने से पहले मिल लूँगा उनसे। कुछ बात भी करनी है मुझे। माँ से भी बातें कर लिया करो, तुम दोनों के तो काम ही खत्म नहीं होते। या तो मुझे बहुएं ला कर दो ताकि मैं उनके साथ बातें किया करूं। तो असल मसला ये है। उसने मुस्कुराते हुए माँ को बाजू के घेरे में लिया। हाँ, यही है भाई, हर माँ का ख्वाब होता है। मेरे दो दो जवान बेटे हैं, दोनों में से एक भी माँ की बात नहीं मानता। अल्लाह ना करे मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी हो। आपकी बात रद्द करने से पहले मैं मर जाना बेहतर समझूंगा। उसके लहजे में हमेशा की तरह मोहब्बत और एहतराम था। वो बहुत कम खुल के बात करता, मगर जब इजहार करता तो सामने वाले की जान निकाल लेता। उसका हर रूप ऐसी शैली होता था जैसे वो पसंदीदगी हो या नापसंदीदगी, वो हर काम शिद्दत से करता था। अल्लाह ना करे दिलशेर, हरगिज़ दोबारा ऐसा मत बोलना। महिमा तड़प ही तो गई थी। कैसा शेर जवान बेटा था उसका, निहायत खूबरू और सादतमंद। ऐसे बेटे तो माँओं का फ़ख्र होते हैं, उनकी आंखों का नूर होते हैं। फिर आप क्यों ऐसे दिल बुरा कर रही हैं? मैंने कब आपकी बात नहीं मानी? तो फिर शादी के लिए क्यों टाल मटोल कर रहे हो? कोई पसंद है तो बता दो, मैं सर आंखों पर बिठाऊंगी। मैं सर आंखों पर बिठाऊंगी उसे। जो भी होगी बहुत नसीबों वाली होगी जिसे मेरा बेटा अपने लिए मुंतखब करेगा। अल्लाह रहम करे। मैं क्या लड़कियां देखता फिर रहा हूँ? मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही अभी काम के बखेड़ों में उलझाऊँ। मगर आप तसल्ली रखें, मैं आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं रखता। आपकी पसंद की लड़की से शादी करूंगा मैं, पक्का। जिसे मैं पसंद करूंगी तुम शादी कर लोगे? आपको कोई शक है? दिलशेर एहान के कहे पर नहीं, मुझे यकीन है, क्योंकि एहान आसिफ का बेटा अपनी बात से फिरता नहीं है। महिमा के लहजे में शोहर और बेटे के लिए मोहब्बत के साथ साथ फख्र भी था। बिल्कुल, क्योंकि डैडी कहते हैं मर्द को अपनी ज़ुबान से फिर जाना ज़ेब नहीं देता, इसलिए आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें। वो तो ठीक है, मगर उरद शेर का क्या करूं? वो क्यों अपने डैडी जैसा नहीं है? ज़रा जो उसके अंदर अपने डैडी की तरह धीमापन हो, हर वक्त नाक भुचड़ाए फिरता है। वो इसलिए कि वो पूरा का पूरा ज़ारून मामू पर गया, इसलिए दिमाग थोड़ा गर्म रहता है उसका। वैसे मैंने नोट किया है, जब से जुरेज की शादी हुई है, ये आप सबके सोए हुए अरमान यकदम ही जाग गए हैं। सुनने में आया कि आज बीजान जाहिर भाई को घेरे हुए थी। आप सब क्यों हमारी आज़ादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? जिसको देखो शादी की बात करता नजर आता है घर पर। हाँ, तुम लोग तो जैसे मान ही लेते हो, और ये बुरा है। जाहिर सबसे बड़ा है और इकलौता भी। अब अगर उछना चाहती है तो उसे शादी कर लेनी चाहिए ना, मगर तुम लोग तो अनोखे ही हो भाई। वो जो मुश्किल से माँ को राम कर पाया था, अब दोबारा ही बात छेड़ बैठा था।